let's see what stocks, what sectors can give us a breakout. Now अगर market गिरता है तो support कहाँ पे मिलेगा? Not for few days. You will definitely be expecting a target of a few sectors which benefit our. Hi investors and traders, welcome back to the channel. I'm your host Dr. Seema Jain, and as you know, market has been falling down for quite some time. At least it started falling down from 13th September, and today we stand on 27th of September, almost like 7-8 trading days have passed by, and rupee has even reached 81 rupees. You know, like $1 is equal to more than 80 rupees. It's even reached 81 rupees. And there are some IT companies which will benefit from this increase in the dollar value. When dollars strengthen up, a few sectors which benefit are IT and definitely export. And besides that, we are now heading towards the festive seasons. So what I'm expecting that FMCG stock should give a really good breakout. So market has been falling down, and now let's see what stocks, what sectors can give us a breakout. So I'm going to talk about first the sectors right in front of you. I have the screen. The first sector that seems to be recovering or have kind of made a bottom is pharma. Pharma looks to be recovering a little bit. Okay, the recovery started from 19th September and now it's a continuation of recovery. After that, IT. Have a look at IT. IT is standing at the triple bottom, right? These triple bottom, a very, very strong support zone, and above 27,100 in the IT index, we can see a good breakout coming up. Have a look at FMCG. It's already in the uptrend, right? And there was a slight, the price rejection from the higher levels, but I'm expecting, it to further go up. Like for example, I have few stocks on my radar. I have Hind Unilever on my radar. I have Asian Paints on my radar. These are the two stocks which technically look very, very good. So having said that, let's see what happened in Nifty today. So Nifty was almost like range bound. Nifty is kind of coming to like a support zone at this point of time. Breaking this could further lead it to a zone of about 766, and if that level is broken, then 16,400, and then after that 16,000 can be definitely expected. As far as my understanding is concerned, so much drop I'm not expecting. 1,000-point drop from this level I'm not expecting, although the price action has been very, very strong. When I say price action has been very strong, it simply means have a look at the Nifty. It made a double top, broken this barrier, and after that gap down opening, there could be further continuation in the downward direction. Now अगर नीचे की तरफ मार्केट जाता भी है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई बाइंग नहीं आएगी. बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जिनको कि अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना होता है. वो कुछ स्टॉक से एग्जिट करते हैं, कुछ में उनको कंपल्सरी कंपल्सरी एंट्री लेनी होती है. तो बहुत सारे आपको ऐसे सेक्टर्स मिलेंगे, सेगमेंट्स मिलेंगे, स्टॉक्स मिलेंगे जिनमें कि इंस्टीट्यूशंस एंटर कर रहे हैं. तो एज ऑफ नाउ द थ्री सेक्टर्स, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर एंड एफएमसीजी, ये मुझे बहुत सॉलिड और स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं. बट अब चलते हैं, बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें कि हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आते हुए देख सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको आईटी स्टॉक्स दिखाना चाहती हूँ. हैव अ लुक एट आईटी स्टॉक्स. नौकरी ने जबरदस्त रिकवरी की है. माइंडट्री लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग टू मी. माइंडट्री ने जो आज ये जो वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है, अगर कल ये अपने हाई के ऊपर सस्टेन करती है विच इज 3260, देन एक अपवर्ड मूव एक्सपेक्ट डेफिनेटली किया जा सकता है. देन आप देख सकते हैं कि लाल पैथ लैब एक ऐसी जगह पे खड़ा है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग, एक वी शेप रिकवरी के बाद ये स्टॉक एक डबल बॉटम को ब्रेक करने वाला है. आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ये डबल बॉटम बन रहा है और इसको ब्रेक करने वाला है.
तो अबव द प्रीवियस हाई जहां से इसको रेजिस्टेंस लगा था, आपको एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आते हुए मिल सकती है। दैट मीन्स कहाँ पे हमने तो इसका बाय ऑलरेडी दे दिया था, 2550 पे बाय दिया था, बट अगेन अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो 2690 के ऊपर आपको फ्रेश एंट्री इसमें मिलेगी। सिप्ला ने एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है आज, और आज के दिन इसने 1105 का हाई लगाया है। अगर ये 1105 के हाई को ब्रेक करता है तो एटलीस्ट 10% का मूव मेरे को इसमें आता हुआ जरूर दिख रहा है। मतलब अभी हम 1100 पे खड़े हुए हैं तो हमको 1200 1300 के टारगेट इसमें आते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, आप देखिए एलटीआई को कंसोलिडेट किया है, पर गिरने के बाद इसने कंसोलिडेट किया है और आज एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें आती हुई दिखी है। तो कहाँ पे हमको बाइंग का मतलब ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी है? 4530 के ऊपर अगर एलटीआई जाता है तो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी श्योर मिलेगी। तो जहां से हमने बात की है, फर्स्ट हमने बात की है माइंट्री की। माइंट्री लुक्स वेरी गुड, वेरी प्रॉमिसिंग। देन वी डिड टॉक अबाउट लाल पैथ। लाल पैथ अगर 2690 के ऊपर जाएगा तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। सिप्ला अगर 1105 को क्रॉस करेगा, जो इसका आज का हाई है, तो इसमें कम से कम 10% का मूव आता हुआ जरूर दिख रहा है। एक स्टॉक जो मिस हो गया है वो है एबॉट इंडिया। आप एबॉट इंडिया को भी देखिए तो आज इसने अपने डबल बॉटम को एक स्क्यूड डबल बॉटम लगा रखा है। अगर ये इस नेक को क्रॉस करता है, यहाँ पे नेक है इसका फॉर्मेशन, इसको क्रॉस करता है तो एक अपवर्ड मूव इसमें आ सकता है। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेट मी जस्ट शो यू। अगर इस जगह के ऊपर जाता है, अगर अबाउट इंडिया अगर जाता है 18,250 के ऊपर, तो हम इसमें 19,300 के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज लाइक मूवमेंट ऑफ 1000 पॉइंट्स। तो अबाउट इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग गुड। एंड देन हमने बात की थी लॉरस लैब की, नो नॉट लॉरस लैब, हमने बात की थी एलटीआई की। एलटीआई में प्राइस हॉरिजॉन्टल गया है, पहले तो एक जबरदस्त बाइंग आई है, फिर प्राइस हॉरिजॉन्टल गया है, फिर प्राइस रिजेक्शन के साथ फिर से ऊपर गया है, और आज एक डिसाइसिव मूव आया है और हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब ये 4575 के ऊपर जाएगा। तो एलटीआई में भी एक बहुत जबरदस्त मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, और जहां तक मुझे लगता है कि आईटी में एक अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आप रडार पे रख सकते हैं। और जाते जाते एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। तो पहले निफ्टी को और बैंक निफ्टी को जो है हम ऑप्शन चेन की हेल्प से देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। सो सबसे पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी में अगर आप देखते हैं तो कॉल राइटिंग हो रही है, इन द मनी कॉल राइटिंग हो रही है 17,000 के ऊपर, पुट थोड़े अनवाइंड हुए, तो मतलब द स्टांस ऑफ निफ्टी इज स्लाइटली वीक। निफ्टी का जो स्टांस है वो थोड़ा सा वीक है, और इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं ग्राफ पे भी। ये निफ्टी का स्टांस है, अगर अपने लो को ब्रेक करती है निफ्टी तो डेफिनेटली आप देखिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग है 17,000 के ऊपर। 17,000 के ऊपर एक जबरदस्त कॉल राइटिंग है। यहाँ पे आप देखो इस जगह पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग इंक्रीज हुई है, और जहां तक हम बात करते हैं पुट राइटिंग की तो वहां पे डिक्रीज हुआ है, लाइक सम अनवाइंडिंग हैज हैपेंड। और ये दिस क्लियरली इंडिकेट दैट देयर कुड बी फर्दर ड्रॉप दैट कैन कम इन निफ्टी। ओके, नाउ अगर मार्केट गिरता है तो सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, ये हम ढूंढने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द ऑप्शन चेन। और अगर आप नोटिस करेंगे तो यही 17,000 पे ही निफ्टी को एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं जो कि सबसे ज्यादा है। जबकि अगर रेजिस्टेंस देखते हैं तो 1,17,100 पे 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं। तो दैट मीन्स आने वाले दिन में जब निफ्टी की एक्सपायरी होगी 17,000 से लेकर 17,100 एक नैरो रेंज होने वाली है, अंटिल आपको उसमें कोई अनवाइंडिंग दिखाई देती है। अब हम इसी तरह बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा बेरिश लग रही है विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी। अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में ऑप्शन राइटिंग ज्यादा हुई है,
मतलब 38, 300, 38, 400, 38, 300, 38, 400. There has been more call writing, as well as if I look into the put writing, there is huge put writing has increased at 35, 500. So like the range in upcoming days is going to be narrow, a bit narrow. So market may remain volatile for some time, so you've got to be careful, but you can be stock specific. आप स्टॉक स्पेसिफिक होके ट्रेड कर सकते हैं और मेरे रडार पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम I would be liking to trade in IT, I would like to trade in pharma, and I would like to trade in FMCG, and I missed 2 trades on FMCG. Let me give you those 2 trades as well. The first one is Asian Paints. Asian Paints अगर आज की हाई को ब्रेक करेगा which is 3500, you can definitely expect a move till about 3550, and then 3550 is broken, you can expect a target of 3590. After 3590 we can even see the targets of 4000. Another FMCG stock which is on my radar is Hind Unilever. And this Hind Unilever is what I want to tell you here is that Hind Unilever is not for few days. You should at least have 2 months ahead contract. Like you should trade in November contract. Your entry is going to be about 2728. If this stock crosses 2728, you will definitely be expecting a target of 2800 to begin with, and after 2800 you can see 2900 and 3000 can also be seen. So these are 2 FMCG stocks which you should definitely keep on your radar. I'm expecting a good move in upcoming days. So with this, I'll be signing off. Hope you like my videos. If you like, please give a thumbs up, like, share, and subscribe. All the best. Take care. See you in the next video.